اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اپنی جلسے کافر دا نعرہ بالکل نہیں لگانا چاہیے. جس چیز تو کسی نو چڑ ہوئے وہ لفظ بدل جاؤ. تمام ربوے کے مرزئی ہمارے جلسے میں آئیں اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں کہ وہ راہبر ہیں. ان کے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے الفاظ کو نرم کریں. اللہ کی قسم اقلیتوں کے لیے الفاظ نرم ہو سکتے ہیں, عیسائیوں کے لیے ہیں, یہودیوں کے لیے بھی ہیں, لیکن جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل وہی ہے جو حضرت ابو بکر کا تھا. وہاں ٹی وی پر بیٹھ کر اب بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جی ہم یہ اقلیت نہیں ہے, یہ تو اقلیت اپنے آپ کو مانتی نہیں ہے, یہ تو زندیق ہیں, یہ تو کافر ہیں. حق کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. السلام علیکم ناظرین, ڈاکٹر اتفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اتفاق اختلاف چینل میں پھر ایک بار خوش آمدید. جیئیں گے تو دلیل کے ساتھ, مریں گے تو دلیل کے ساتھ. چند دن قبل حکومت نے ایک قدم اٹھایا کہ مرزائیوں کو, قادیانی لانتیوں کو مائنورٹیز کے حقوق دے دیے جائیں. اور ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ مائنورٹیز کے حقوق بالکل بھی نہیں دینے چاہیے, کیونکہ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے, جو لوگ خود کو کافر نہیں مانتے بلکہ الٹا وہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو نعوذ باللہ, وہ مسلمانوں سے مسلمان ہونے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں, ان کو کس طرح سے ہم مائنورٹیز کے حقوق دیں؟ ان کو تب تک مائنورٹیز کے حقوق دینے کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ جب تک وہ خود کو یہ نہ کہیں کہ وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ بدترین کافر ہیں. پھر ہم سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پاکستان کے تمام علماء اکرام نے اکٹھے ہو کر اس بات پر تنقید کی کہ عمران خان نے یہ جو کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے اور عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ناظرین یہ تو ایک پولیٹیشین کی بات ہے, یہ تو عمران خان کی بات ہے کہ جس کو چلو دینی تعلیم کا نہیں پتا, وہ لوگوں کے مشوروں پر لگ کے میں بھی اس کے پاس جو ارد گرد مشورہ دینے والے ہیں شاید وہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہوں, ان کی باتیں سن کر اس نے یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے کا سوچا. ناظرین اب میں بات کرنے جا رہا ہوں ان بے شرم لوگوں کی بات کرنے جا رہا ہوں. ایک ہے وہابیوں کا مولوی جس کا نام ہے ناصر مدنی المعروف چیریٹی چور, جس کو میں چیریٹی چور کے نام سے جانتا ہوں. دوسرا محمد علی مرزا جو قادیانیوں کا بہت بڑا ایجنٹ ہے اور جو لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے میں دن رات محنت کر رہا ہے. اور ناصر مدنی تو چلو خود کو وہابی کہتا ہے, اس کو تو کوئی مسلک بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہابیوں میں جاتا ہے, وہابی کہتے ہیں کہ تم ہمارے نہیں ہو بھاگ جاؤ. اہل سنت میں جاتا ہے تو اہل سنت والے کہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ, تمہارا ہمارے مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیوبندیوں میں جاتا ہے, دیوبندی بھی اس کو بھگا دیتے ہیں. ناظرین جو ایک کمرے میں بیٹھ کے, ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے اپنے سامنے 2-3 حواری بٹھا کے اور اسلام کے دین کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی تمام ہسٹری, مسلمانوں کے تمام ائمہ کرام اور مسلمانوں کے تمام اسلاف کو غلط ثابت کرتا ہے, ان کی ہر بات کو جھٹلاتا ہے. ناظرین وہ بے غیرت بے شرم محمد علی مرزا, اس کی ویڈیو بھی دیکھیے اور ناصر مدنی وہابیوں کے مولوی کی بھی ویڈیو دیکھیے, اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اپنی جلسے کافر دا نعرہ بالکل نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ اسی غیر مسلمانوں اگر اس لفظ نال پکاراں گے کہ جدے تو انہاں نو چڑھے, تو جس چیز تو کسی نو چڑھ ہوئے وہ لفظ بدل جاؤ. اگی لفظ کافر نے کتنا ملک پاکستان دا نقصان کیتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اتنے ہیرے علماء کرام آج قبروں میں جا سوئے ہیں, ان کی نعم البدل آج تک کبھی دنیا میں نہیں آیا. دیکھا ہے حق نواز کبھی سٹیج پہ, اب دیکھا ہے کبھی ضیاء القاسمی, دیکھا ہے کبھی ضیاء الرحمان, دیکھا ہے کبھی علامہ یزدانی شہید, دیکھا ہے کبھی علامہ احسان. تمام ربوے کے مرزئی ہمارے جلسے میں آئیں اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں کہ وہ راہبر ہیں. ان کے ناظرین آپ نے اس کی ویڈیو سنی کہ مرزے کو بدتمیزی سے نہیں بلانا چاہیے. ناظرین آج میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ختم نبوت پہ اس مرزے لانتی نے ڈاکہ ڈالا. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس کی آئی ڈی پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی, جب اس کی آئی ڈی کو کاپی کیا گیا, تب اس کو یہ کہتا ہے خبیث کا بچہ. اور اس خبیث کے بچے نے, شیطان نے, یہ فراڈیا اپنی ماما پاپا سے پوچھے
कि किसी का नाम यूज करते ही अपने असली बाप का नाम पूछे। जब नबी पाक की खत्म नबूवत की बारी आई और जब नबी पाक के सबसे बड़े हक की बारी आई और जब मुसलमानों के हक की बारी आई तो ये कहता है कि मिर्ज़े लानती को बदतमीजी से नहीं बुलाना चाहिए। नाज़रीन, फिर इसने कहा कि तुम लोग मिर्ज़इयों को चिढ़ क्यों देते हो कि वो काफिर हैं, और जिस लफ्ज़ से कोई चिढ़ता हो वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, तुम लोग उसको काफिर ना कहो। मैं इस कादियानियों के एजेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम उनको काफिर ना कहें तो क्या हम उनको मुसलमान मान ले। तुमसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते कि आईने पाकिस्तान ने जब इनको काफिर करार दिया है, और तुम कौन होते हो बगैरत इंसान जो कहते हो इसको काफिर ना कहो। दूसरे नंबर पर भुट्टो था कि जिसने लड़ाई लड़ी और जिसने इस नेक काम को सर अंजाम दिया। मुसलमानों के बहुत से उलमाए इकराम जिन्होंने जिहाद किया, जिन्होंने लड़ाई की और इनको काफिर करार देने में कईयों की जानें गई और उन्होंने हर हाल में इनको काफिर डिक्लेयर किया। आज तुम पाकिस्तान के आइन को भी नहीं मानते, आज तुम उन इस्लाम के असलाफ की कुर्बानियों को भी नहीं मानते और तुम कहते हो कि इनको काफिर ना कहो। तो इससे भी साबित होता है, नाज़रीन आप खुद देखें, जो इंसान एक बदतरीन काफिर को भी कहता है कि इनको काफिर ना कहो, वो उनका एजेंट नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान जिसको दीनी इल्म नहीं है, उसने इन मर्ज़इयों को काफिर डिक्लेयर किया, उस पर भी हम तनकीद करते हैं। इनको माइनॉरिटीज के हकूक क्यों दे रहे हो? जब वो खुद को काफिर नहीं कहते हम उनको माइनॉरिटीज के हकूक नहीं देंगे, लेकिन इसने तो हद ही नहीं छोड़ी, ये तो कहता है कि उनको काफिर भी ना कहो। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के दिल में थोड़ी सी भी खत्म नबूवत की मोहब्बत है तो नाज़रीन इसके खिलाफ आवाज उठाएं और सोशल मीडिया पे इसको एक्सपोज करें। और इसके हवारी जो हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि नासिर मदनी से पूछो कि आज क्यों वो कहने पे मजबूर हो गया कि इनको काफिर ना कहो। आज इसके हवारी इससे पूछें कि ओल्ड एज होम के नाम पर चंदा जो इसने इकट्ठा करना था मर्ज़इयों से, उसकी वजह से वो चंदे की खातिर ये आज मर्ज़इयों को कह रहा है कि काफिर ना कहो। इससे पूछो कि आज इसको किसने हक दिया कि आज ये लोगों को कहे कि मर्ज़इयों को काफिर ना कहो। नाज़रीन, फिर इसने कहा कि लफ्ज काफिर से तुम्हें पता है कितना नुकसान हुआ है। नाज़रीन, जिन लोगों ने इन कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया, आज भुट्टो भी जिंदा है और आज वो तमाम मुसलमान जिंदा है जिन्होंने मर्ज़इयों को काफिर डिक्लेयर करवाने के लिए दिलो जान से मेहनत की और कुर्बानियां दी। क्योंकि शहीद जिंदा है, खासकर जो नबी पाक की खत्म नबूवत के लिए शहीद हो, उसका नाम भी क़यामत तक जिंदा रहेगा। और चूंकि वो शहीद है तो अल्लाह की नजर में वो क़यामत तक जिंदा ही रहेंगे। नाज़रीन, लेकिन ये इतना बेशर्म बेहया इंसान है, आज ये कहता है कि कितना नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? कम से कम दुनिया को हमने बता दिया कि जो खत्म नबूवत का डाका डालने वाले लोग हैं वो काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नासिर मदनी और मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो तो कादियानियों के खिलाफ भी बोलते हैं, वो तो खत्म नबूवत के बारे में भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं ये बहुत पुराना इनका हथकंडा है। मिर्ज़े लानती ने भी नबूवत का दावा करने से पहले यही हथकंडा यूज किया था कि पहले मुसलमानों को कहा कि मैं तो खुद नबी पाक की खत्म नबूवत का रखवाला हूं, फिर उसने कहा मैं मुजद्दिद हूं इस सदी का, फिर उसने कहा मैं नबूवत का ऐलान करता हूं। नाज़रीन, सेम इसी तरह ये भी बेशरम आज कादियानियों के एजेंट बन के आज उनको डिफेंड कर रहे हैं और खत्म नबूवत पे इसलिए ये बात करते हैं ताकि ये लोगों के दिलों में एतमाद पैदा कर सकें और लोगों को अपने साथ लगा के फिर लोगों के ईमानों के साथ खेल सकें और खत्म नबूवत पे डाका मारने वालों को डिफेंड कर सकें। ये पहले ही जब बिकते हैं तो ये उनसे पहले ही डील कर लेते हैं कि हम आपके खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि हमने अपने अवाम का एतमाद भी हासिल करना है, हमने उनसे भी मुफाद हासिल करना है। इसलिए ये दोनों साइड्स पे रहकर उनको भी डिफेंड करते हैं और अपनी अवाम को जो मुसलमानों को भी अपने एतमाद में लेते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरे बेशरम बेहया इंसान की तरफ, मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ। उसको देख लीजिए कि वो क्या कहता है। उसकी वीडियो पहले भी मैंने आपको सुनाई, अब उसकी वीडियो फिर से देखें वो क्या कह रहा है। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे।
नाज़रीन, सबसे पहले उसने कहा कि जो मरज़ई हैं वो अहले सुन्नत से निकले हैं। नाउज़ुबिल्लाह, यानी कि इसने मुसलमानों का एक जो बहुत बड़ा मकतबा फिक्र है, एक बहुत बड़ा मसलिक है, उसके साथ मरज़इयों को मिला दिया, यानी कि इसके नजदीक अहले सुन्नत और मरज़ई एक सी चीज है। नाज़रीन, फिर ये कहता है मरज़ई इस्लाम का एक फिरका है, यानी कि ये कहता है कि मरज़ई सुन्नियों से निकले हैं, वो फिरके में आते हैं, वो काफिर नहीं है। वो कहते हैं कि अगर उनको काफिर मान भी दिया जाए तो हम उनको काफिर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं। नाज़रीन, आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इसलिए उनको काफिर नहीं कहता कि उन्होंने नबी पाक की खत्मे नबूवत पे डाका मारा, बल्कि ये इस वजह से उनको काफिर कहता है कि वो इसको काफिर कहते हैं। यानी कि अगर वो इसको काफिर कहने से बाज आ जाएंगे तो ये भी उनको मुसलमान कहना शुरू कर देगा। तो ये नाज़रीन, यहीं से इसकी जो बेईमानी और बेशर्मी है और जो उनकी हमायत है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लें कि ये किस कदर उनकी हमायत करता है। नाज़रीन, एक तरफ ये लानती इंसान है, एक नासिर मदनी और एक मोहम्मद अली मिर्जा, के जिनकी मुनाफिकाना बातें आपने सुन ली। और मैं खादम हुसैन रिजवी को भी सलाम पेश करता हूं कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कम अज कम खत्मे नबूवत की पूरी चौकीदारी की और खत्मे नबूवत के लिए बहुत ज्यादा काम किया। हाँ, वहां टीवी पर बैठकर अब बक बक करने की इजाजत नहीं होगी कि जी हम, ये अकलियत नहीं है, ये तो अकलियत अपने आप को मानती नहीं है, ये तो जिंदीक है, ये तो काफिर है। हुजूर ने फरमाया दुनिया के अंदर जितनी मिट्टी है उस मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं खुद गवाही देता हूं कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। बस बात खत्म हो गई, बात इसके बाद कोई बात रह जाती। तो नाज़रीन, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके दिल में खत्मे नबूवत की मोहब्बत है, नबी पाक की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, तो इन दो मुनाफिकों को एक्सपोज करें और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इनके बारे में आवाज उठाएं और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन मुनाफिकों को भी पता चल सके कि खत्मे नबूवत के रखवाले आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और जो कोई भी नबी पाक की खत्मे नबूवत पे डाका मारने की कोशिश करेगा या उन गंदे कादियानियों को डिफेंड करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनको एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो देखिए, फैसला खुद कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिए। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।